Yasodhya Hospital and father of so many great doctors and father-in-laws of so many great doctors. Tell me what you want to understand. What is the ultimate goal of life? Ultimate goal of life is to be so much useful, so much important, so much relevant, so that once you die, the whole world is crying for you. That much important because you are serving people, you are wiping tears from every eye. You are caring and sharing like Andrew Carnegie, like Bill Gates, like Warren Buffett. Forget about the darker part of life. But they were so generous, so kind, so compassionate. But don't become the black sheep of the society. There are so many black sheep who really says, I'm philanthropist. I'm not doing for money. I'm doing everything for the public. But I know personally, and I've worked such places where say this is only the source of income for such people. Everything is shut down because of corruption. Anil Ambani is going jail. So many other people are running away, avoiding, evading, bribing people to spare them. So ultimate goal of life is to be really very genuinely useful. You know, there are so many doctors. Somebody become criminals. They want to destroy India. The Islamic revolutionary criminals, you must be knowing. There are so many clinics running. They are all doing for money. They are all doing for money. Even those who are not real doctors, they have fake degree and they run the business. Everyone thinks about money. But ultimate goal is to be a genuine person in life. But you know very well, nobody learned from Buddha, Marcus Aurelius, Epictetus and Seneca. They only know how to earn money. They will steal your money, they will blackmail you, they will trap you. All corruption. They only want money. They don't want to be good man. That's why your best friend, Diogenes the dog, was searching a man who is honest and sincere and very clear man in the midday of Athens on the streets, And then Alexander the Great realized his greatness. And he said, if I were not Alexander the Great, I will be very happy to be Diogenes the dog. Very different. He is a awakened man. He knows the truth. कबीरदास कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए ऐसी करनी कर चलो हम ऐसे जग रोए बिकॉज कहाँ सीखे दीवान जी ऐसी देनी देन जो कर ऊंचो करो तासो नीचे नैन देनहार कोई और है जिंदे बतर रैन लोग भ्रम मुझ पर करे तासो नीचे नैन उसको लगता है मेरा है मैं कितना काबिल हूँ मैं कितना कमा रहा हूँ इतना महीने से कमाया किसी को दे दूंगा क्या अरे साले तू कमा रहा है ईमानदारी से कि धोखा से कि चोरी करके तुम्ही को मालूम है लेकिन अलेक्जेंडर ने खून की नदियां बहा के समों को मार के काट के अपने देह पर कितना घाव लेके जीता दुनिया को वो साला रोना शुरू किया जब मर रहा था बोला बड़ी भूल हो गई भैया सबको मार दिया सबको काट दिया देख क्या लेके जा रहा हूँ कुछ क्या खा लिया आए खा लिया चले अरे सीख सालो सीख सबसे बड़ा चीज़ है जिंदगी में कुछ हो न हो ज्ञान हो बुद्ध की तरह मार्कस ऑरेलियस की तरह और दुनिया के जितने में महान व्यक्ति हुए ज्ञान दिए सबसे बड़ा ज्ञान है शांति शांति तभी आती है जबकि ज्ञान हो और जब ज्ञान हो तो आदमी दुनिया में अपने लिए जीता ही नहीं जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है मधुमन खुशबू देखता है सावर साबन देता है खुदगर दुनिया में इंसान की पहचान है जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है अपने लिए जिए तो क्या सबसे बड़ी चीज़ ये है और आप बोलोगे क्या रे भाई तुमको तो पैसा कौड़ी है नहीं तुम तो साला फ़कीर है नाम भी बोलता है फ़कीर शर्म भी नहीं आती फ़कीर है अरे मन लगा मेरा यार फ़कीरी पे अरे मन लगा मेरा यार फ़कीरी जो सुख पावे राम भजन में ओ सुख राही अमीरी में अरे सालो अमीरो चोर चक्के बदमाश शैतान कितना पैसा कहाँ से कमाया चोर साला चोरी किया बैंक को लूटा धोखा दिया गड़बड़ सरबर किया पैसा कमा लिया इज्जत नहीं कमाया तुम थू थू करता है लेकिन एक फ़कीर है जिसके पास कुछ नहीं है वो डायोजेनिस द डॉग है अलेक्जेंडर ही बोलता रहे भैया ये मुझसे भी बड़ा है न लोभ न लालच न काम न क्रोध इसने जितेंद्रिय है अपने मस्तिष्क को जीत लिया है ज्ञान को समझ गया है आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ भले एक बंदे जंजीर जंजीर में जकड़ा हुआ है माया मोह काम क्रोध मत लोभ में मन लगा मेरा यार फकीरी में इसीलिए बोलता हूँ भाई और बोलता हो लागा चुनरी में दाग
छुपा हूँ कैसे। कैसे। तो सच यही है सती बाबू कि दूसरों के लिए जियो, दूसरों की भलाई करो। अब बोलो कि दूसरों को क्या कर, छोड़ दो भाई, दुनिया का जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हें है। ज्ञान तुमको है, दुनिया को ज्ञान नहीं है। वो तुम्हें मारेगा, पीटेगा, गाली गलौज करेगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भोजे, तुम उनकी भलाई करो, तुम उनकी भलाई करो। वो भलाई करे नहीं करे उसको सीख ही नहीं है, समझदारी नहीं है। वो सांप है, उसको कोबरा है, उसको जहर देना काम है। लेकिन तुम तो समझदार है, उस कोबरे का विष लेके उसका एंटी वेनम बना के उसकी ज़िंदगी की रक्षा करो, तुम दूसरों के लिए जियो। इसीलिए जब तुम मर जाओगे तो लोगों को लगेगा अरे एक अच्छा आदमी मर गया आज। लेकिन अगर कोई मर जाएगा, रंगाराव बहुत बड़ा आदमी था, खोल के बोल देता हो, विश्व सूत्रों से पता चला मर गया तो केवल 3 ही लोग थे उसको उठाने वाले, चौथा आदमी भी नहीं था। उसका बेटा और उसका 1-2 रिश्तेदार, कोई नहीं गया। तो बाद में भीड़ जुटाने के लिए हर गांव में बस भेज दिया, फ्री बस गिफ्ट के साथ, तब कुछ गए उसके भोज में लोग खाने। छी छी छी, अरे ऐसे स्वार्थी, अपने लिए जिया, बेटा लिए अरबों खरबों कमा के गया, दुनिया के लिए क्या किया, कुछ किया। अगर सती बाबू मेरे दोस्त थे, रंगाराव दोस्त थे इसीलिए कि रंगाराव जीविका का दोस्त था, नहीं तो हमसे दोस्ती नहीं लगाता। हमारे ऐसे फ़कीर से कौन दोस्ती करता भाई। अरे हमारा दोस्त भी बोलता है साला फ़कीर है, लगता है साला ये देखो पैसा उसा मांग रहा है, और वो साला विश्वास दिलाता है, अरे तू भगवान है, तू मेरा है, तू मेरे आदमी से भी बढ़ के है, और ऐसा गार्ड पर लात मारता है भाई। तो वही बताना चाह रहा था, दोस्ती नहीं थी रंगाराव से, दोस्ती थी कृष्णा रेड्डी से, कॉमन था वो बीच में। बोले रंगाराव तुमने इतना जमा लिया, कमा लिया, क्या किया, पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएगा। इतना कमाया तो एक स्कूल बना दिया कोटेश्वर राव के नाम से, ये है समारंभ में। अरे जो लोग काम किया, थोड़ा एक कॉलोनी बनाता, रंगाराव कॉलोनी फॉर द हेल्पलेस, इतना ज़मीन था, 2-4% लाके बनाता वो कॉलोनी, उसका नाम अमर हो जाता। इसीलिए बोलता हूँ मैं, कुछ ही पढ़ा हूँ लेकिन समझदार आदमी हूँ। मरो तो कुछ मोन्यूमेंट छोड़ के जाओ। ज़मीन खरीदा साला, ज़मीन बेच के पैसा कमाया, तुम मरोगे तो कोई याद नहीं करेगा। बोला ये साला चोर था, देखो पूरा कब्जा किया, गवर्नमेंट का लैंड कब्जा किया, ये भूदान वालों को कब्जा किया, सारा किसानों को गरीब बनाया। लेकिन अगर तुम कुछ बना के जाओगे ना, मोदी साला याद रहेगा। एम्स बना दिया तेलंगाना में, मोदी का तस्वीर लगा है, किसी का नहीं है। केसीआर मिलने भी नहीं गया, स्वार्थी उससे। तो जीवन का यही सब उद्देश्य है कि कुछ भी करो, लक्ष्य हो कि लोगों की भलाई हो। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। हमेशा ये लक्ष्य रख के करो। हर आदमी पब्लिक के लिए करता है, जो भी काम करते हो पब्लिक के लिए करते हो। कस्टमर तो पब्लिक ही है भाई। पॉलिटिकल लीडर्स भी साला पब्लिक को धोखा दे के सत्ता में आता है और फिर मलाई खाता है, और साले जज को खरीद लेता है और उसको बरी कर देता है। केजरीवाल चोर साले हराम की कुतिया की औलाद को देख, वो जज को घूस दिया साला, बोल जो बड़ी है, ये तो बड़ा पवित्र है, ये हाँ कट्टर ईमानदार मादर चौथ की औलाद।